پروگرام ہم لوگ میزبان احمد عمران خان حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 171 خدا تعالیٰ کہتا ہے کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ بڑا کلیئر تصدیق خدا کی مل گئی کہ جس کو عقل نہیں وہ انسان بھی جانور جیسا ہی ہے۔ یہ ہدایات ہمارے خدا کی طرف سے بڑی کلیئر اور کیٹیگورک ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے گرمی گرد گداگر گورستان، یہ ہے ملتان۔ اس شہر کے پریس کلب کے سامنے دن دہاڑے ایک 2 بچوں کے 29 سالہ باپ نے اس پورے سماج کے سامنے اداروں کی طرف سے انصاف نہ ملنے پر اس ریاست کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور وہ شخص جانبر نہ ہو سکا۔ مشتاق خان اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کس ڈپریشن سے گزرا، اور تحصیلدار پٹواری، عدالت اور قانون کس طرح سے اس کو ہیوملیٹ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس نے آخر کار خودکشی کر لی۔ یہ کہانی آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ملتان کے مضافات میں یہ ایک گاؤں ہے جہاں کے رہائشی شہباز خان نے کچھ دنوں پہلے ملتان پریس کلب کے سامنے کیمروں کی آنکھ کے سامنے خودکشی کی۔ اس نے تو خودکشی کر لی اس سوسائٹی، اس سیاست، اس سماج، اس ریاست کی ناانصافی کے خلاف، لیکن یہ اس کے گاؤں کے لوگ جو اس کے انصاف کے متقاضی ہیں۔ ایک منٹ، اگر شہباز کو انصاف نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ہم بھی شہباز والا قدم اٹھائیں گے، ہم بھی پلاس کے سامنے جائیں گے، سارا خاندان خودکشی کر لیں گے۔ ہمیں انصاف نہ دے گے تو ہم وہی قدم اٹھائیں گے جو شہباز نے اٹھایا تھا، ہم پورا خاندان۔ وہ تو انتہائی قدم ہے، تو پھر ہمیں انصاف دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ یہاں آئے، ہماری گزارش سنیں، اگر ہمیں انصاف نہ ملا ہمیں وہی کرنا ہے۔ آپ بھی انصاف نہ ملے تو کیا کرو گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ جلو گے؟ یہ آگ، یہ لاوا عوام کے اندر پنپ رہا ہے، پل رہا ہے، اور بے انصافی کے ظلم کی وجہ سے یہ کسی بھی ٹائم دہک سکتا ہے اور پھٹ سکتا ہے۔ وہ راضی ہے شہباز خان کی فیملی، اس کے لواحقین اس وقت کس کرب سے دوچار ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اب ہم شہباز خان کے گھر، اس کے خاندان سے آپ کو ملانے لے کے چل رہے ہیں۔ 12 اکتوبر 2015 شہباز خان نے ملتان کے پریس کلب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگائی، اور اس کی وجہ تھی انصاف کی نافراہمی، انصاف نہ ملنا۔ یہ ماجرا کیا تھا، اور شہباز خان کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کو ممکنہ طور پہ کون کون سی آفتیں آج ٹکریں گی، یہ شہباز خان کے والد اور اس کی والدہ سے پوچھتے ہیں۔ شہباز کا خاندان، ماں باپ، بچے موجود ہیں، لیکن اس کی بیگم، اس کی زوجہ عدت کی وجہ سے کیمرے کے سامنے نہیں آ رہی۔ جو خاندان اویلیبل ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی فوجدار۔ فوجدار، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 10 بچے۔ شہباز نے اتنا انتہائی قدم فوجدار کیوں اٹھایا؟ اس نے اپنے آپ کو کیوں قتل کر لیا، جبکہ اس کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، تیسرا بچہ ہونے والا ہے؟ جی وہ 2012 سے یہ ان لوگوں سے جھگڑ رہا تھا، عدالت میں ادھر جا ادھر جا، ہر ایک جگہ اس نے اپیل کی، درخواستیں دی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی 3-4، اور اپنا رحیم شریف کو بھیجی، چیف جسٹس کو بھیجی، رحیم شریف صاحب کو بھی بھیجی؟ جی ہاں۔ یہ کب بھیجی؟ درخواست لکھ کے بھیجی تھی، اچھا بھئی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، آپ فوج بیچ میں آ جائیں۔
उसको भेजी, फिर चीफ जस्टिस को भेजी, हाई कोर्ट भेजी, अपना मुल्तान कचहरी जो अपना अदालतें हैं, अभी तक हमारा जो है ना वो केस चल रहा है। वो झूठे मूठे केस बनवा के पर्चा में लेके आके तो उन्होंने ये कहा जी भी ये हमारे को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये आके कब्जा कर लो। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, क्या ऑर्डर दिया उसने? उन्होंने ये कहा भाई उन्होंने हमारे पास सबूत है, हमने कहा भाई वो सबूत दो, बैलेंस तो दिखाओ। अच्छा, अब ये जो जमीन जिसके ऊपर शहबाज ने खुदकुशी की, उसका मसला क्या है? मसला ये है वो हमारे पास आने चाहते थे, वो कब्जा करो पे माफिया। ये जमीन किसकी है? अपनी है हमारी। ये जमीन तो सरकारी है। वो जमीन हमारी भी है, उसमें थोड़े कुछ चंद मरले हैं वो गवर्नमेंट की है, कुछ चंद मरले होगी, बाकी हमारी है सब। ठीक है। और इसके इस जमीन के ऊपर कब्जा किसका है? कब्जा हमारा वैसे तो 100 साल का है। तो जब ये एयरपोर्ट बना तो एयरपोर्ट की वजह से वो खुद उन्होंने हमारी कोई थोड़ी ज़मीन थी वो एयरपोर्ट के अंदर आ गई थी, उन्होंने हमारे जो मकान गिराए उन्होंने उठा के हमारी जो मंडी थी वो उन्होंने वहाँ मकान बना के दिए थे, उन्होंने यहाँ हमारे को 5 मरले के मकान शिफ्ट कर दिया। हाँ। फिर ये अब दूसरी पार्टी का क्या मसला था? दूसरी पार्टी है ये 2012 में वो कहते हैं हमने खरीदी है। किससे खरीदी है? वो है कोई मेहंदी अली मेहंदी हसन है, उससे खरीदी है। अली मेहंदी हसन? हाँ, वो भी कब्जे से कब्जा हुआ है। नहीं तो वो उसके कागजात, इसकी रजिस्ट्री आपके नाम नहीं है? है हमारे पास सब फिर कैसे खरीद ली उसने? वो तो टॉट थे ना, वो उन्होंने जो अब जिस खरीदी है ना वो ना इस जहान पे है ना अगले जहान पे है। इस शहबाज ने कहा ना भाई वो बंदा तो सामने लाओ जिससे तुम खरीदी है, जिससे तुम खरीदी नहीं आया वो बंदा सामने? नहीं आया ना, औरत का ना। साल में नहीं आया? तकरीबन 20-25 साल से वो सामने नहीं आ रहा। पटवारी से आपने राब्ता किया? शहबाज ने राब्ता किया? पटवारी है अपना राणा रजाक, वो क्या कहता है? वो तो झूठे मोटे का, उन्होंने तो करोड़ों रुपए के अपने लाखों रुपए पैसे लेके, सरकारी जमीन थी उनको, वो जिम्मेदार थे, उनसे पैसे लेके वो गलत कागज बनवा के उनको दिए। थी कमिश्नर। पुलिस से राब्ता किया आपने? जब उन्होंने पुलिस डाला, ये आप फिर होते हैं। शहबाज ने जब पुलिस से राब्ता किया, पुलिस ने क्या कहा? यहाँ से हमारे को बुलाते थे, जिस वो वहाँ जाते थे, वो कहते थे आप यहाँ यार राजीनामा कर लो। राजीनामे के लिए वहाँ जाते थे तो राजीनामे में वो क्या कहते थे? कहते यार छोड़ो, पर इस झगड़े को छोड़ो, इनको कब्जा दे दो। हमारी कहती थी? हाँ, पुलिस कहती थी वो, क्योंकि उन्होंने हमारे पैसे उनसे लिए होते ना। यहाँ आके रोटियां खाते हैं, पानी पीते हैं, बोतलें। बस वो तहसीलदार सबसे बड़ा मेरा करप्ट जरा दुश्मन है ना, तहसीलदार अफजल साहब है। अफजल के रजाक? रजाक तो पकड़ा गया ना, पटवारी। अभी तक वो नहीं पकड़ा। तहसीलदार आपका जानी दुश्मन है? जानी दुश्मन, मेरे बेटे का जानी दुश्मन। क्यों? उसने फोन किया था मेरे शहबाज बेटे को, मैं भाई तुमने ये कार्रवाई की है, हमारा नाम लिया आगे जाके, तो मैं तुम्हारे बाप के ऊपर पर्चा करवा दिया है। मेरे ऊपर पर्चा हुआ भाई, मैं तुम्हारे कब हुआ पर्चा? ये 1.5 साल हो गया। शहबाज के बच्चे, अब जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं, उनको पता बता दिया आपने बाप कहाँ चला गया तुम्हारा? बाप मार गया बेचारों का, उन्होंने बता दिया बाप मार गया। इन्हें समझ आई ये बात? छोटी बच्चे को समझ चाहिए, बच्चे को समझ नहीं आती ना। वालिद को माइक दीजिएगा। फौजदार साहब, आप कह रहे हैं कि आपका जानी दुश्मन था पटवारी तहसीलदार, उन्होंने FIR भी करवा दी, आप खुद फौजी हैं। शहबाज आपका 28-29 साल का जवान लड़का, तो इतनी जल्दी वो हौसला कैसे हार गया 3 साल के अंदर? और जंग पे उसने अपने आप वो ज़हीन बहुत था। उनके तुम दरखास्तें देखो, वो DIG साहब ने पढ़ी हैं, कहता है ये साइन मैन भी नहीं कर सकता, ना दरखास्त लिख सकता हूँ। मान लिया वो उसको मशवरा किसने दिया तू अपने आप को खुदकुशी, अपने आप को आग लगा ले? मशवरा किसने नहीं दिया, बस वो तंग आके, इन लोगों से तंग आके। आपका बेटा 40 साल आपने फौज में खिदमत की इस मुल्क की, आपका बेटा इतनी जल्दी इस जंग में महाज इतनी बुरी तरह कैसे हार गया, मैं पूछना चाह रहा हूँ। बस वो इसी वजह से महाज हारा नहीं है, वो जीत गया है। हारा नहीं है, वो जीत गया है। क्यों? लेकिन वो आप नहीं समझते कि वो अगर आज जिंदा होता, अपने बच्चों की कफालत कर रहा होता, तो फौजदार साहब ज्यादा बेहतर था? बस
मेरी किस्मत ऐसी थी। किस्मत तो ठीक है, अपनी जगह पे होगी। मुझे बताएं कि शहबाज ने जिस दिन आग लगाई, घर बता के गया मैं आग लगाने जा रहा हूँ? नहीं, मुझे बताता या किसी को बताता मैं ये काम। अच्छा, वो जब उस प्रेस क्लब के सामने आग लगा रहा था, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई साथ नहीं था, कोई साथ नहीं। जिस वो उसने आग लगाई, वहाँ मीडिया वाले उसकी तस्वीरें बनाते रहे, उसको नहीं पकड़ा। अगर उसको पकड़ लेते मेरे बेटे की जान बच जाती। कोई भी शख्स पकड़ लेता। शहबाज से जख्मी हालत में आपकी कोई बातचीत हुई? जी मेरे हुई। क्या बातचीत हुई? जिस वक्त मुझे पता चला 4 बजे 5 बजे मुझे फ़ोन आया, मेरे दामाद ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला भाई तुम अस्पताल पहुंचो, मामू जी अस्पताल पहुंचो। मैं पूछा खैर तो है? कहने लगा तुम पहुंचो सही। जिस वक्त मैं वहाँ गया, अस्पताल पहुंचा इमरजेंसी में, तो मैंने चरपाई पे देखा बेड पे, तो उसने ऐसे हाथ लाया, कहता मैं ठीक हूँ, अबू घाबरना नहीं है। मैं उसकी पूछा नहीं फौजा साहब आपने कि क्या किया तूने बेटा? वो 2 पीछे डॉक्टर खड़े थे, उन्होंने मेरा बाजू पकड़े पीछे कर दिया। मैं हो सकता उससे कोई और सवाल पूछ लेता। आपकी बातचीत नहीं हुई शहबाज? जी हाँ, सिर्फ इशारे से बात हुई है। कहता तुम घाबरो ना अबू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं उसके कितनी देर बाद शहबाज की डेथ हो गई? उसके बाद मैं फिर वापस, मेरे को हालत नहीं देखी जाई, मैं वापस आ गया घर बताया। उसके बाद फिर तकरीबन 9 बजे फिर मुझे इत्तला मिली उसकी तबीयत ख़राब है। मैं फिर यहाँ से मैं अपने किसी को लेके मोटरसाइकिल पे बैठ के गया, तो उस वक्त उसकी बस आखिरी दम थे। फिर वहाँ से मैं वापस आया। जिस वक्त दोबारा फिर फ़ोन आया, कहता उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई है दोबारा। फिर मैं ठीक है, मेरे को ले चलो। और अभी तैयारी कर रहे थे, फ़ोन आ गया, अभी उसकी डेथ हो गई। ये ख़ानदान है जिसके बेटे ने इंसाफ ना मिलने की वजह से अपने आप को सरे बाजार चलती सड़क पे मुल्तान प्रेस क्लब के सामने दिन दहाड़े आग लगा दी। इस सिस्टम के ऊपर अपनी मौत से वो कालक लेप दी है उसने, कि जिसकी वजह से इस रियासत के हर अलम बरदार का मुंह काला और मकरू दिखाई दे रहा है। क्या इस ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका जवाब हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या हम इसी तरह जानवरों की तरह ज़िंदा रहने पर कब तक मजबूर रहेंगे, इसका जवाब हमें तलाश करना है। इंक्वायरी होने के बाद देखा जाएगा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट इनका क्या है और इनका डिपार्टमेंटल इनएफिशिएंसी क्या है। मैंने इनको बताया कि साहब जी मैं यहाँ पे नहीं गया था, हमें इस मामलात का पता भी नहीं था। ये है मुल्तान का प्रेस क्लब। 12 अक्टूबर तकरीबन दोपहर को 3 बजे के करीब चलती सड़क में, अब भी 3 बजे के लगभग का ही टाइम है, चलती सड़क पे शहबाज खान ने अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा ली। और वहाँ पे इस सड़क के ऊपर कोई ऐसा इंसान नहीं था जो शहबाज खान से वो माचिस छीनता, उसको रोकता। जिस जगह पे वो मोटरसाइकिल सवार खड़ा है, इस जगह पे शहबाज ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का। उसके बाद थोड़ा सा आगे आके उसने अपने आप को आग लगाई और वो जलता हुआ, उसका जस्ट चलता हुआ, जिसकी तस्वीरें आपने मीडिया में पब्लिश देखी, इस जगह के ऊपर एग्जैक्ट इस मुकाम पे शहबाज इतना जल गया कि वो चल नहीं पाया और गिर गया। कुछ घंटों के बाद वो एक्सपायर हो गया। नाज़रीन, मुल्तान में जो एक दिलचस्प चीज़ हमें देखने को मिली, सरकारी अफसरान देर तक अपने दफातर में बैठे पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। और उन्हीं अफसरों में से एक हैं एसी सिटी मुल्तान अताउल हक साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब, ये पटवारी जो इस केस के अंदर मुलव्विस है बराह रास्त या बिल वास्ता, राना रज़ाक, वो कहाँ पे है?
देखें वो इस वक्त उसका नंबर बंद है, ट्रेस करने की कोशिश की, अभी ट्रेस नहीं हो रहा है। अब आई डोंट नो कि वो इस वक्त कहाँ है। हमें हमारे सोर्सेज ने बताया कि वो भाग गया। केस जब से उसने खुदकुशी की उसके बाद से वो उसको जैसे ही सस्पेंड किया गया उसके कुछ दिनों के बाद उसने बाकी सिविल सोसाइटी से रब्ता अपना काट लिया है और वो एग्जाइल में चला गया है कि सरकारी मशीनरी भी उसको अप्रोच नहीं कर सकती। इज दैट ट्रू? मैंने तो अभी जब आप लोगों ने कहा है तो ट्राई की है, नंबर चूँकि बंद जा रहा है, ज़ाहिर है जब सस्पेंड हो जाता है कोई बंदा तो उसके बाद उसका दफ्तर में काम नहीं रहता है, जो पहले वो काम कर रहा होता है उस काम से वो हट जाता है। लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज में भी जो मोबाइल नंबर है ये इसको अनडाउटेडली ये एक कनेक्शन है जिसके थ्रू रब्ता ऑल द टाइम 24 घंटे रब्ता रखा जा सकता है। लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज, हमारे ऑफिस में, समा के ऑफिस में अगर मोबाइल नंबर नहीं मिलता तो घर के नंबर पे या किसी लैंडलाइन के थ्रू रब्ता किया जाता है। को आप ऐसा मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं होता। बिलअमूम हम इस वक्त चूँकि मोबाइल फैसिलिटी है, हर बंदे के पास आजकल मोबाइल मौजूद है, तो मोबाइल के हद तक हमारा रब्ता होता है। घर के नंबर हमारे पास पटारियों के लिए। लेट्स से राना रजाक से अब मोबाइल पे रब्ता नहीं होता तो हाउ विल यू ट्रेस हिम आउट? वो तो मफरूर हो गया। फिर देखिए उसको जो इंक्वायरी हमने करनी है या जो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, सबसे पहली कार्रवाई तो ये कि उससे बस्ता ले लिया है। उसके खिलाफ उसका जो ऑफिशियल फंक्शन था वो उससे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद चूँकि वो सस्पेंड हुआ है तो उसे तहसील हाजिर होना चाहिए, इंक्वायरी को फेस करना चाहिए। मे भी उसने कोई पर्सनल वजह से नंबर बंद किया हो। राहुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। मुल्तान थाना सदर में एफआईआर नंबर 308/15 दर्ज की गई जो कि शहबाज खान की खुदकुशी के हवाले से थी। पंजाब पुलिस, हमारी पुलिस जो कि बड़ी होनहार पुलिस है और इसकी होनहारी के चर्चे ज़बान ज़द आम हैं, इस सोसाइटी में इस पुलिस का रोल कुछ ज़्यादा अहम है। उसने चाबुक जहनी का मुजाहरा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो पुलिस वाले और तहसीलदार, पटवारी, उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद नासिर जी। नासिर थोड़ा आगे आ जाओ। जी सर। नासिर जी सर। क्या तुम्हारा मसला है? शहबाज खान के साथ ज़मीन का क्या मसला था? सर जी हमारा कोई मसला नहीं है। मेरा ख़ास तौर पे मैं इनके बरादरी का हूँ, जो मतलब फ़रूक है ना, उसकी सिर्फ बरादरी का हूँ। कौम के साथ हैं हम, सिर्फ जैसे कौम होती है। तुम अपनी कौम के साथ किस मौक़िफ़ पे हो? किसी मौक़िफ़ पे नहीं है, दूर रहते हैं हम इनसे। जैसे कौम का नाम होता है ना। तुम मुझे ये बताओ कि मसला क्या है, फिर तुम्हें क्यों पकड़ लिया? सर जी मैं काम कर रहा था, जो मुदई पार्टी आदमी पकड़वा रही थी ना, जिस मसले के थे, तो उन्होंने कहा है कि ये भी हो रहा है कौम का, इसे भी। और हाँ जी। और कौम है तुम्हारी? हाँ जी। ठीक है। मैं काम कर रहा था सर जी। तुम काम कर रहे थे? हाँ जी। बाबा तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद रशीद। थोड़ा आगे आ जाओ। मोहम्मद रशीद, थोड़ा आगे आ जाओ। जी मोहम्मद रशीद। तुम्हें किस केस में पकड़ा? तुम्हारा क्या मसला था ज़मीन का? तुम्हारा बेकसूर पकड़ी साहब हुए। शहबाज का बाप कहता है कि तुम काबिज हो ज़मीन के ऊपर। नहीं बाबा, ज़मीन जैसमें जैसे ना वो काबिल है, बीआई काबिल थी सकती। ज़मीन तो शहबाज के ख़ानदान के नाम थी, फौजदार के नाम थी, उसके ऊपर कब्जा तुमने किया हुआ नहीं है? ना है। तो फिर पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा? पुलिस ने साहब को पकड़े जो भाई वो खड़े जो आ से घर से ऊन आके अंगल से मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा क्या, तुम वहीं उसी ज़मीन पे रहते हो? नो, हमारा घर दूसरी तरफ है। हम भी कौम के लाभ, इन्होंने पकड़ लिया हमें और हम दादा पोता घर खड़े थे, इन्होंने हमें उठा लिया। मैं स्कूल से पेपर दे के आ रहा था। फौजदार कहता है कि तुम लोग काबिज हो ज़मीन के ऊपर, तुमने कब्जा कर लिया। हमारा कोई कब्जा नहीं है, हम उससे दूर रहते हैं, तो इन्होंने कौम के लाभ आगे हमें उठा लिया। मुझे एक बात बताओ, तुम तीनों, ये पुलिस जिसने तुम्हें उठाया है वो अंधी है, गूंगी है, बहरी है, उसको नहीं पता कि तुम तो हर मुल्ज़िम तो डिनाई करता है अपने, उसको मना करता है अपने जुर्म का, एतराफ़ कहाँ करता है? जो मेरी ज़ाती मामला आता है ना, मैं सिर्फ कौम का हूँ। जहाँ पे लगाई हुई है ज़मीन के कब्जे का चक्कर है। पुलिस को नहीं पता पुलिस अंधी है? सर जी बताया है इनको,
जब ये पकड़ रहे थे ना, मैंने इनको बताया कि सर जी मैं यहाँ पे नहीं रहता, हमें इस मामलात का पता भी नहीं था। वो पुलिस ने क्या कहा फिर? पुलिस ने कहा है भाई आगे चलोगे, जो कहना है आगे चल के कहना। नाज़रीन, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब सीएम लेवल तक, आईजी ऑफिस तक इन्वॉल्व हो जाए तो फुर्तियाँ दिखाने के लिए खानापुरी की जाती है, और अमूमी तौर पे ऐसी खानापुरी के अंदर बेकसूर लोग पकड़े जाते हैं। शहबाज खान ने जो ख़ुदकुशी की वो सिस्टम के ख़िलाफ़ थी, जिसके अंदर पटवारी और पुलिस, पहले पटवार खाना फिर पुलिस, उसको इंसाफ नहीं दे पा रही थी, जिसके नतीजे में गुस्से में आके अपनी मायूसी का इजहार उसने किया, अपनी मौत को ख़त्म करके। पुलिस के अफसरान का मौक़िफ़ भी बड़ा ज़रूरी है, और अब हम लेंगे पुलिस के अफसरान का मौक़िफ़। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं थाना सदर मुल्तान के SHO राशिद थीम साहब के साथ। राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राशिद साहब, ये जिस मुकदमे को अब आप परसू कर रहे हैं, प्रॉप कर रहे हैं, ये मुकदमा क्या शहबाज की खुदकुशी के बाद दर्ज हुआ या पहले ही दर्ज हो चुका था? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डिसीज़ की डेथ से कोई 15-20 दिन पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ। शहबाज के रिलेटिव हैं मुनीर, उनकी मुद्दईयत में। ठीक है। उसके बाद इनके एक फारूक, इनका जो मेन कल्प्रेट है, इनका मेन ओपोनेंट है जिससे राइवलरी चल रही है, फारूक नेमली फारूक वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जुडिशियल लॉकअप। ठीक हो गया। इसके बाद इनके खिलाफ जिस बात पे ये मामला बढ़ा कि इनके खिलाफ कोई क्रॉस वर्शन का इशू है। क्रॉस वर्शन इसलिए हो भी जाता है सम टाइम कि जब आपका मेडिकल रिजल्ट आता है तो उसको पुलिस ऑफिसर डिनाई नहीं कर सकता, उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटी है एज पर लॉ कि आप वो कंप्लेनेंट उसको चैलेंज करते हैं। मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपसे समझना चाह रहा हूँ। ये FIR दर्ज हुई 15-20 दिन पहले। अब इस FIR के अंदर दफात कौन कौन सी हैं और किरदार कितने हैं? इसमें 9 मुल्ज़िमान हैं जो नॉमिनेटेड हैं, दे वर आइडेंटिफाइड मिस्टर ABC सो एंड सो। बाकी इसमें कोई 20-25 हैं वो नामालूम है। ठीक है। अब इस FIR में, इस केस के अंदर शहबाज की खुदकुशी के बाद एक नया टर्न ले लिया, जिसके अंदर 2 पुलिस के अफसरान, एक तो SHO जिसको आपने रिप्लेस किया, और उसके अलावा पटवारी जो कि मुअत्तल है, तहसीलदार भी मुअत्तल है। ये इन 3 किरदारों का स्टेटस क्या है और इनके खिलाफ क्या दिफात है? 4 जो मेन IO है हमारा उस केस का, दीदन, ठीक है, जमीर, ठीक है, वो CPO साहब ने वो भी सस्पेंड किया। 4, 2 पुलिस से हो गए, 2 महकमा माल रेवेन्यू से हो गए। अभी ये जो कंडक्ट है IO का, SHO का, फॉर्मर का, तहसीलदार का, पटवारी का, रेवेन्यू वाले अपने कंसर्न ऑफिशियल्स को देख रहे हैं। अंडर विच रिपोर्ट, मतलब वो किस रिपोर्ट को परस्यू कर रहे हैं? FIR तो पुरानी चल रही है सर। FIR पुरानी हो गई, इस बंदे की डेथ हो गई। ठीक है। इसके बाद ऑफिसर्स जितने हैं वो इसमें ऑनलाइन हुए, जब उसमें मैटर प्रोब किया जा रहा है। ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स की सीनियर ऑफिसर्स इंक्वायरी कर रहे हैं कि इनका कंडक्ट क्या था। कानून की किताब में, कानून की रूह से अगर कोई सरकारी अफसर जो सरकारी ऑफिस होल्ड करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नेग्लिजेंस दिखाए, तो फिर कौन सी दफ़ा लगती है अगर उसके ऊपर मुकदमा कराना? इसमें पुलिस ऑर्डर में बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्लियर है। इसमें 155 है, इसमें उसकी सब क्लॉजेज हैं, उसमें डिफरेंट है कि अगर हम इनएफिशिएंसी करते हैं, हम करप्शन करते हैं, हम हाई हैंडेडनेस करते हैं, हम मिसकंडक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसमें वाज़ेह है। उनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन है। RPO साहब, CPO साहब मुल्तान की क्लियर उसमें डायरेक्शंस हैं सीनियर ऑफिसर्स के लिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी होने के बाद देखा जाएगा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट इनका क्या है और इनका डिपार्टमेंटल इनएफिशिएंसी क्या है। जो लोग आपने गिरफ्तार किए हैं, जो अप्रहेंड कर लिए गए हैं, जी, वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ उस बिरादरी के हैं जी, और हमें उठा के ले आए पुलिस वाले। अब इस बात का मैं उनका क्या कह सकता हूँ, उनके बरादरी के ही हैं, उनके रिलेटिव्स भी हैं, उनके क्लोज भी हैं। अभी इनका जो हम रोल है एट्रीब्यूट कर, वो लोग कहते हैं कि मुश्ताक ने हमारा नहीं कहा था, मुश्ताक का हमारा डायरेक्ट उसके साथ तस्वीर नहीं था, जिनके साथ डायरेक्ट तस्वीर वो डाटे हैं। ये इनके लेम एक्सक्यूजेज हैं। ये सेम बरादरी है, सेम कौम है, सेम है। ये फिर इतना यूनाइटेड है कि ये बिल्कुल मिलके इन्होंने उस दिन धावा बोला, जो FIR थी वो बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद
जो मुझ तक थी या मैंने देखा, इन्होंने मेडिकल लिए, वहाँ पे रिजल्ट्स आए, इनके कॉग्निजिबल बन गए, वो फिर अब इनके मेडिकल चैलेंज हुए हैं, कंप्लेनेंट ने चैलेंज किए हैं, उस पर मेडिकल बोर्ड होगा, री एग्जामिन होगा, उस पर देखा जाएगा कि इनका मेडिकल ठीक है, उनका मेडिकल ठीक है। बज़ाहिर जो मैंने देखा है वो जिनके स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो अगर वो नॉन कॉग हो गए तो ये भी तो अभी बात सामने आएगी इनकी, तो ये बिल्कुल गिल्टी है। ये ऑफिसर्स इतने करप्ट क्यों हैं? ये सर आप जितना जोर से कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतने ये करप्ट हैं। SHO कंसर्न जो था और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दे हैव ऑलरेडी बीन सस्पेंडेड। हम इस वक्त मौजूद हैं DCO मुल्तान जाहिद गोंदल साहब के साथ, उनसे उनके महकमे के हवाले से कुछ बात करते हैं। गोंदल साहब, ये बताइए कि शहबाज ने जो खुदकुशी की उसकी वजह बुनियादी तौर पे जो सामने आई वो ये थी कि उसको डिपार्टमेंट्स के थ्रू उसको सेटल नहीं किया जा रहा था। आपका कलमदान जिसके नीचे पटवारी और तहसीलदार भी आते हैं, ये क्या वजह है कि ये ऑफिसेज इतने करप्ट क्यों हैं? इसमें जी अभी इस तरह की कोई सूरत जो मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, मैंने सबसे पहले इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। तो इंक्वायरी कमेटी ने उसमें एज सच जो भी प्रोसीजर बताया है वो रेवेन्यू की तरफ से जितना भी था वो अंडर द कोर्ट डायरेक्शन उन्होंने किया है। हाई कोर्ट की आर्डर उसके साथ लगे हुए हैं। उन्होंने डिमार्केशन करनी थी, उन्होंने डिमार्केशन कर दी। डिमार्केशन की है उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड की। ये जो सिकनी लैंड है जिसके ऊपर ये ठहरे हुए थे, उसकी डिमार्केशन उन्होंने नहीं की, बिकॉज इट वाज नॉट इन देयर परव्यू। जब वो पार्टी जिसने डिमार्केशन कराई उसने एग्रीकल्चर लैंड जो है वो जब ले ली, तो उनके 4, 5, 10 दिन बाद उन्होंने खुद से ही इनका 1-2 कमरे जो वहाँ बने हुए हैं वो गिरा दिए। आपने शहबाज के केस को रिस्पॉन्ड किया, दैट इज़ फेयर इनफ, लेकिन मेरा सवाल था कि इन ऑफिस के अंदर करप्शन इस हद दर्जा लीथल बदबूदार करप्शन क्यों है? ये ऑफिस इतने करप्ट क्यों हैं? ये सर आप जितना ज़ोर से कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतने ये करप्ट हैं। और अब तो CM ने ये LRMS बना के पटवारी का अमल दखली आलमोस्ट ये जो कंप्यूटराइजेशन हुई है उसके अंदर म्यूटेशन। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके पास आपकी प्रॉपर्टी का पूरा एक सिस्टम उनके हाथ में था। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका बस्ता जो है वो पटवारी के पास है। जब बस्ता उसके पास है तो आप इस डर में हैं कि शायद ये मेरी प्रॉपर्टी को इधर उधर न कर दे, तो उस परसुएशन में ये डर की कोई हकीकत है? वाकई पटवारी इतना ताकतवर होता है कि वो प्रॉपर्टी के बस्ते में कुछ सफ़े आगे पीछे कर देता? सफ़े नहीं आगे पीछे कर सकता, आपको कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर सकता है कि आप एक काम करना चाहते हैं, मसलन आप एक चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको 10 दिन नहीं मिलेगा, आपको फ़र्द नहीं देगा। इसी चीज़ को सामने रख टेक्निकली मारता। टेक्निकली ये हकीकत है कि पटवारी से MPA MNAs और अपने अपने वक्त के सदूर और बड़े बड़े जय्यद लोग भी घबराते हैं और परेशान रहते हैं। ये आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली आपका तजर्बा होगा। मेरे पास किसी MPA ने ये नहीं कहा कि जी ये पटवारी से मैं डरता हूँ। ये मुझे आखिर में बता दीजिए कि ये जो केस जिसमें शहबाज ने अपने आप को खुदकुशी करके कत्ल कर दिया और एक सोसाइटी, एक रियासत के पूरे सिस्टम के ऊपर उसके मुंह पे कालक लेप गया अपनी मौत से, इस केस के अंदर क्या पटवारी को भी गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए था तफ्तीश के लिए, तहकीक के लिए? पटवारी बिल्कुल इधर ही है जी। तफ्तीश उस वक्त होती है जब अरेस्ट उस वक्त होती है जब बंदा। पटवारी मिसिंग नहीं है? बिल्कुल इधर है। पटवारी ने अपनी जो उनकी रिपोर्ट बनी है दोनों सीनियर अफसर्स की, उसके अंदर उन्होंने पटवारी को गिल्टी नहीं लिखा। ठीक। इसलिए कि पटवारी का एक्शन जो है वो आज से 30 दिन पहले का है, 20 दिन वाक़े से 20 दिन पहले का एक्शन है। और उसके बाद जो वो डिसअलाइनमेंट उसकी हुई है वो इस सारे सिस्टम में कहीं से आके उसको कुछ पटवारी से गिले थे, कुछ उसको पुलिस के रवैये से गिला था। वो इन चीज़ों को मिला के
تو ایک اس کے اندر ایک لاوا بنا اور اس کو وہ فیڈ اپ ہوا یا ڈسلینڈ ہوا اور اس نے یہ سوئسائڈل اٹیمپٹ کیا. سی پی او ملتان کے اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ جو کیس اب جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہیں شہباز خان کی خودکشی کے بعد, پہلے تو یہ بتائیے کیا اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے یا محکماتی طور کے اوپر انویسٹیگیشنز کا آغاز کر دیا گیا؟ شہباز جس اس کی برادری جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کلیم کرتے تھے کہ وہ ایک سرکاری زمین ہے. 21 سپٹمبر کو اسی سال ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کا قبضہ دلوایا آن دا آرڈرز آف دا کورٹ اورا برادری کے کچھ لوگوں کو. اس کے بعد 2 اکتوبر کو وی گاٹ انفارمیشن کہ وہاں پہ دونوں پارٹیز اکٹھی ہیں اور وہ ان کے درمیان لڑائی کا احتمال ہے. تو امیجیٹلی میرے 2 ایس پیز وہاں پہ گئے اور وہاں پہ کچھ فائرنگ ہوئی تھی. اس فائرنگ میں کیونکہ وی فیلٹ کہ اورا برادری جو ہے وہ دے آر اگریسرس, سو وی گاٹ رجسٹرڈ اے کیس اگینسٹ دیم شہباز کے کچھ ریلیٹیوز کی مدعیت میں. اس کیس کے اندر تھانہ صدر میں وہ میرا کیس رجسٹر ہوا. اس کیس کے اندر شہباز کی جو برادری تھی وہ مدعی تھی. ٹوٹل 9 جو نامینیٹڈ ایکیوز تھے اس میں سے 1 گرفتار ہو کے جیل جا چکا ہے, باقی 8 اس میں بیل پہ ہیں. اینڈ کچھ لوگ اس میں نامعلوم تھے جس میں سے 3 آلریڈی اریسٹ ہو چکے ہیں. سو اس کے بعد پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو اے سی کنسرنڈ ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کی ان رائٹنگ کہ اس طرح ان دونوں پارٹیز کے درمیان یہ ایک ایشو بنا ہے تو یہ فردر بھی ڈیٹیریٹ ہو سکتا ہے. یہ ان رائٹنگ ہم اچھا پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ پریونٹیولی یہ دے دیا لکھ کے؟ جی, this incident took place on 2nd and we wrote on 7th. خودکشی والا یا نو انسیڈنٹ جو لڑائی کا ہوا جی جس میں پرچہ درج ہوا, تو 7th کو ہم نے 7th of اکتوبر کو ہم نے لکھا جس پہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہاں پہ آپ دوبارہ بھیجئے اپنے ریونیو سٹاف کو کنسرن کو, سو ڈیمارکیشنز وہ کر کے ہمیں بتائے تاکہ کسی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ سے بچا جا سکے. دس وی ہیو گیون دیم ان رائٹنگ. اس کی خودکشی کے بعد کیا کوئی پولیس کیس رجسٹر ہونا بنتا ہے, جسٹیفیکیبل ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں ہم اس کے لیگل ایسپیکٹس باہر کیف دیکھ رہے ہیں, بٹ آن دا ادر سائڈ اسی مقدمے میں ہم نے ریکویسٹ کی ہے شہباز کے ورثاء کو, دے آر کمنگ ٹو می ٹمارو جی, آج میری بات ہوئی ہے ان سے, وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس میں ہم ان کا ورشن اس میں ضرور درج کریں گے. ایس ایچ او کنسرن جو تھا اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر دے ہیو آلریڈی بین سسپینڈیڈ, وہ انڈر چارج شیٹ ہو چکے ہیں, دے آر انڈر انکوائری, اور اس میں جو بھی ان کا لیگل پیرامیٹرز کے مطابق ان کا جو اس میں سٹیٹمنٹ آئے گا اس میں ہم ضرور اس میں آگے کارروائی کریں. اقبال نے کہا چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو, یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا. جب تک ہم جہالت سے محبت کرتے رہیں گے اور اپنی جہالت کے اوپر بے شرموں کی طرح چھاتی تان کے اس کا دفاع کرتے رہیں گے, تب تک اس طرح کی اموات ہمارے سامنے آ کے ہماری جہالت کا منہ چڑھاتی رہیں گی. ہمیں اس جہالت سے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جان چھڑانی ہے. اللہ کرے کہ آپ اور میں ہم لوگ وہ صبح اس ملک میں اس معاشرے میں جلد دیکھیں جب ہر روح کچھ نہ کچھ شعور رکھتی ہو, ایٹ لیسٹ اتنا شعور کہ اس کو پتہ ہو کہ وہ مسجود ملائک ہے اور ایک روح کی اکاؤنٹیبلٹی اس نے اللہ کے حضور جا کے دینی ہے. پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. میزبان احمد عمران خان کو ہم لوگ کی پوری ٹیم کے ساتھ ملتان سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.